So, good morning to all of you. Today we will focus on the second part of the IPC strategy, infection prevention and control strategy. So, in earlier classes we have discussed so many things regarding the IPC. We have to discuss about the what are the standard precautions are there. Okay, standard precaution, the basic level of IPC precaution to be used for all patients at all times, regardless of suspected or confirmed pathogen, whether the patient is confirmed or whether the patient is suspected. But we people have to use the standard precautionary measure. Okay, another important thing is that risk assessment is critical for all activity. That is, assess each healthcare activity, determine the personal protective that is needed for adequate protection. While performing the assessment of the patient, whether the physical assessment, whether head-to-toe examination, whether inspection, palpation, percussion, and auscultation, whether any kinds of procedures are to be done during the time, we must have to follow the standard precaution measure. So then we can protect ourselves followed by the patient also. Okay, so what are the elements of standard precaution? First one is the hand hygiene. Second one is the respiratory hygiene or respiratory adequacy. PPE or personal protective equipment according to the risks. Safe injection practices, sharp management and injury prevention. Safe handling, cleaning and disinfection of patient care equipment. Environmental cleaning. Safe handling and cleaning of soil linen, waste management. So these are the different elements of standard precaution. In earlier classes, we have discussed about the chain of transmission, how infection agent will be there, okay, how the reservoir will be or sources will be there, then how that virus will portal of exit, where that virus will come, or how they are exuded from the reservoir, then how it will transmit from one person to another person. Okay, then in which way they will enter into the body of suspect of the susceptible host. Okay, these are some of the chain of infection, we'll say. Okay, agent will infectious agent will be there, then reservoir will be there, portal of exit will be there, mode of transmission will be there, portal of entry will be there, susceptible way. All links will be close to each other. All links are connected to each other. If we will break any link of the chain of infection, then transmission can be stopped or the stop the transmission. Okay, next come back to, so again we'll today continue about the second part of IPC. So today we'll focus on the hand hygiene, how it is performed. Okay, just I am okay, where hand hygiene is to be done by the healthcare worker. Best way to prevent the spread of germs or microorganisms in healthcare setting and the community. Our hands are main tool for work as healthcare workers and they are the link in the chain of transmission. Suppose ये सब लो टच है, देखो ओके, हाई टच सरफेसेस है जो बार बार हम टच कर रहे हैं, ये हाई टच सरफेसेस है, जैसे टेथोस्कोप हुआ, ये डॉक्टर्स भी यूज करेगा, नर्सेज भी यूज करेगा, जैसे आपका ओके सीजर वगैरह भी, अगर कुछ हम सर्जिकल कुछ भी हम अगर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं, okay, with the help of the सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज सीजर हुआ कि चिटिल फोर्सेप हुआ कि अदर जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, उसके बाद मेडिकेशन को बार बार भी हम टच कर रहे हैं, वी आर टचिंग ईच इन एवरीथिंग, इंस्ट्रूमेंट को टच कर रहे हैं, मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, केयर गिवर्स को टच कर रहे हैं, जब उनका हम पेशेंट को जब ब्लड प्रेशर देखने जाएंगे तो उसका शरीर में फॉर एग्जाम्पल हम ब्राकियल आर्टरी में हमको देख रहे हैं, हम सब कुछ उसका ब्लड प्रेशर देख नहीं रहे हैं ब्राकियल आर्टरी में, कि पल्स फील कर रहे हैं रेडियल आर्टरी की उल्नार आर्टरी में, कि पॉप्लिटल आर्टरी की कैरोटिड आर्टरी की एपिकल पल्स उसको हम कर रहे हैं, कहीं पर भी हम अगर प्रोसीजर कर रहे हैं तो वी मस्ट हैव टू डू हैंड हाइजीन. ओके, तो हैंड हाइजीन 5 मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 हैंड हाइजीन का मूवमेंट है. पहला क्या है, बिफोर टचिंग, पहले टचिंग किसी पेशेंट को टच करने से पहले हमको हैंड हाइजीन करना जरूरी है, हैंड वॉश करना जरूरी है. नंबर 2 हो गया बिफोर क्लीन एंड एसेप्टिक प्रोसीजर, कुछ भी हम अगर एसेप्टिक प्रोसीजर वगैरह कर रहे हैं
तो उसी से पहले हम हैंड हाइजीन करना जरूरी है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हम हैंड हाइजीन नहीं करेंगे तो क्या होगा, व्हाट में बी हैपन, देयर में बी द चांसेस ऑफ द स्प्रेड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म into the body of that patient। पेशेंट को हम कुछ प्रोसीजर वगैरह कर दिए, कुछ सलाइन दिए, कि कोई इंजेक्शन दिए, कि उसका बीपी देखें, कि पल्स रेट देखें, कि टेम्परेचर रेकॉर्डिंग किए हैं, ओके, कि सक्शन किए हैं, कि एनी प्रोसीजर हो, कि जो भी प्रोसीजर हम किए हैं, सर्जिकल प्रोसीजर हो, अगर कुछ एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर हो, कि एनीथिंग, ओके, इफ यू टच दैट पेशेंट यू मस्ट हैव टू डू हैंड हाइजीन। Another important thing is that after body fluid exposure, फॉर एग्जाम्पल उसका ब्लड में कॉन्टैक्ट में आ गए, कि इसको सलाइवा में कॉन्टैक्ट में आ गए, कि सिक्रेशन में कॉन्टैक्ट में आ गए, कि उसका यूरिन मीन एनी बॉडी फ्लूइड्स, ओके, अगर कॉन्टैक्ट में आ गए हैं तो यू मस्ट हैव टू डू व्हाट, हैंड हाइजीन। उसके बाद पेशेंट के जो सराउंडिंग्स रहेगा, बेड का अगर साइड में भी आते हैं, कुछ टच किए हैं, तो पेशेंट का सराउंडिंग का तो हमको, जैसे उसका ओके ये दिखा रहा है, बेड का दिखा रहा है, जैसे उसका पिलो हुआ, उसका बेडशीट हुआ, कि पॉड हुआ, ओके, जो भी है, वी आर टचिंग दैट, वी मस्ट हैव टू डू हैंड हाइजीन। ओके, हैंड हाइजीन करना जरूरी है। ओके, हैंड हाइजीन कैसे करते हैं? ओके, हैंड हाइजीन दो तरह की किया जाता है। एक तो अल्कोहल बेस्ड रॉक प्रोडक्ट इज प्रीफरेबल, हैंड्स आर नॉट विजिबल। जब हाथ में हमको पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, heart is not present here, just wait। देखो ये है हमारा क्या, व्हाट इज दिस वन इज द हैंड ड्रॉप। ओके, ये वेक्टोरॉप ब्लू है, जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है। ओके, ये लिक्विड हैंड डिसइंफेक्टेंट, इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ट्यूबरकिल, बासिलाई, फंजाई एंड वायरस है। इसको बोलते हैं अल्कोहल रॉबिन हैंड डिसइंफेक्टेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ले लिया, ओके, और अभी मैं 5 ml तक ले लिया, ओके, मैं ये पर ऐसा रहेगा, ऐसे ही रखा हुआ होगा टेबल में, मैं जाऊंगा 5 ml, 2 पब ले लेना है, 5 ml आएगा। उसके बाद ये तो लेफ्ट साइड का पाम है, ये राइट साइड का पाम है, इसको मेरे को क्या करना है, पाम टू पाम मेरे को, ओके, मूवमेंट करना है, 1 2 3 4 5 सेकेंड हो गया। उसके बाद ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, राइट साइड का मीन लेफ्ट साइड का ऊपर सरफेस में, डॉर्सम सरफेस में, राइट हैंड का पाम में, उसमें भी मूवमेंट करना है, 1 2 3 4 5 करना है। ओके, उसी हिसाब से लेफ्ट हैंड हो गया। लेट्स कम बैक टू राइट हैंड। ओके, राइट हैंड में भी उसे करना पड़ेगा, मीन लेफ्ट हैंड का पाम, राइट हैंड का और डॉर्सम सरफेस ऑफ द हैंड में उसी हिसाब से मूवमेंट कर, 1 2 3 4 5 करना हो गया। नेक्स्ट कम बैक टू, अभी क्या होगा, इंटर मैंने फिंगर, इंटर लास्ट अभी करेंगे। ओके, फिंगर के फिंगर हमको करना है, 1 2 3 4 5, एक इस हिसाब से 1 2 3 4 5 हो गया। उसी हिसाब से अभी जो है हमारा हैंड, जो फिंगर है, फिंगर को हमको करना है 1 2 3 4 5। ओके, लेफ्ट का हो गया, राइट का भी उसी तरह 1 2 3 4 5 करना है। ओके, अभी जो है नेलवेड जो है, नेलवेड को हमको करना पड़ेगा, मीन लेफ्ट हैंड का पाम है। ओके, उसमें हम क्या करें, नेलवेड ऑफ राइट हैंड को हम लेंगे, 1 2 3 4 5, उसी हिसाब से 1 2 3 4 5, ये भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे करने से भी चलेगा। ओके, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, मिनिमम 20 to 30 सेकेंड। अगर हाथ हमको पता नहीं चला कि विजिबल माने विजिबली डाटी नहीं पता चल रहा है, सॉइल्ड नहीं है, तो हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर में करेंगे। अगर पता चल रहा है कि ब्लड लगा है, कि कुछ फ्लूइड वगैरह लगा है, कि पता चल रहा है कि हमारा हाथ गंदा हुआ है, तो उसी टाइम को हमको क्या करना है, सोप और रनिंग वाटर
ओके यूज करना है। उसके बाद क्या करें, सिंगल यूज टॉवल व्हेन विजिबली डर्टी और कंटामिनेटेड विद प्रोटीनासियस मटेरियल। तो उसी टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, 40 to 60 सेकेंड हमको करना पड़ेगा। पहले तो टैप ऑन ऑन करना पड़ेगा, टैप को ऑन करो पहले। ओके उसके बाद जो भी सॉब हो कि जो भी लिक्विड वगैरह लिक्विड सॉब हो वहां से ले लो। ओके उसके बाद दोनों हाथ में पाम टू पाम हमको रब करना है। ओके उसके बाद इंटर फिंगर हमको करना है। ओके ऐसे ऐसे कर लिया। ओके ऐसे ऐसे कर लिया। ओके दोनों 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर, 1 2 3 4 5 कर दे। उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 करना पड़े। उसके बाद पानी में हाथ धो के ऐसे रखना है। ओके ऐसे नहीं करना है, यहाँ से ही चला जाएगा। ओके एल्बो जॉइंट को नहीं आना चाहिए। ओके ऐसे धो के ऐसे हम जो वहां पर अगर होगा क्या होगा, ड्रायर होगा। ओके एयर ड्रायर होगा तो वहां पर दिखा देंगे तो ड्राई हो जाएगा। ओके या हमारे पास टॉवल है, टॉवल यूटिलाइज कर सकते हैं, कि टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर भी यूटिलाइज कर सकते हो, व्यवहार कर सकते हो। ओके नेक्स्ट वन हाउ टू हैंड रब। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसे दिया गया है, रब हैंड फॉर हैंड हाइजीन, वॉश हैंड व्हेन विजिबली सॉइल। कैसे करना चाहिए, पहले तो आप लोग क्या लेना चाहिए, लिक्विड सोप लेना चाहिए। लिक्विड सोप लेने के बाद क्या, रब हैंड पाम टू पाम, हमको पाम टू पाम करना है। उसके बाद राइट पाम ओवर द लेफ्ट और सम एकदम में जैसे आप लोगों को बताया था। ओके उसके बाद क्या करना है, पाम टू पाम विद फिंगर इंटरलॉक करना पड़ेगा ऐसे। ओके पहले तो ऐसे ले लिया, ऐसे ऐसे कर लिया। ओके पाम टू पाम रब किया। उसके बाद डोर्सम सब्सर ऑफ द लेफ्ट हैंड ओवर द पाम ऑफ द राइट हैंड। ओके उसके बाद ऐसे ऐसे कर रहा है, लेफ्ट में किया राइट में भी वैसे करना पड़ेगा। ओके उसके बाद फिंगर टू फिंगर इंटरलेस्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करें, बैक ऑफ द फिंगर्स टू ओपोजिंग द पाम ऑफ अदर फिंगर्स इंटरलॉक। ऐसे देखो मूवमेंट क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी तुम कर सकते हो, लेफ्ट और राइट में वैसे करना। ओके उसके बाद अगर ये हो गया, नाउ यू शुड कम बैक टू थंब, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, बिकॉज हमको नेलवेड को करना है, इट इज वेरी मच इंपोर्टेंट। नेलवेड को हमको करना है। ओके नेलवेड को ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। ओके क्लॉकवाइज कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। ओके उसके बाद ड्राई करना है। ओके जो हैंडरम में होता है विजिबली क्या नॉट सॉइल पता नहीं चलता है, उसी टाइम हम हैंड ड्रॉप करेंगे। ओके अगर हाउ टू हैंड वॉश अभी क्या है, वॉश हैंड व्हेन विजिबली सॉइल अदरवाइज यूज हैंड ड्रॉप। इसका ड्यूरेशन है 40 to 60 सेकेंड है। उसी हिसाब से लो लिक्विड सोप ले लो। ओके जे ओके मैं जैसे आप लोगों को बताया था उसी प्रोसीजर में होगा। ओके यहाँ पर भी ड्राई करना है। ये हमको जो पानी में यूज किए हैं, वाटर में यूज किए हैं, इसीलिए हमको टॉवल चाहिए या टिश्यू पेपर यूटिलाइज किए, उसको इधर उधर फेंकना मत है, जहाँ पर उसका होगा लीड कंटेनर डस्टबिन रहेगा वहां पर ही डालना पड़ेगा। ओके रेस्पिरेटरी हाइजीन, लेट्स कम बैक टू एक्टिविटी। ओके अगर हम कॉफिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी हाइजीन कैसे करना चाहिए। तो पहला चीज है रिड्यूसेस द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए हमको रेस्पिरेटरी हाइजीन करना चाहिए, ये करने से reduces the spread of microorganism that causes respiratory infection। बिकॉज जब हम कॉफिंग करने की स्नीजिंग करें, that coughing during coughing and sneezing that droplet nuclei contain that microorganism। okay suppose if we'll cough or sneeze in front of the public places, in more than one persons are there, during that time that particle or that droplet nuclei will suspended in the air. When the normal person okay come in contact with that droplet nuclei, that may infect the part, that
normal person, or that person will inhale that droplet nuclei. In that cases, droplet. So in that cases, there may be the chances of the colds and the flu. Okay, suppose हम coughing कर रहे हैं, sneezing कर रहे हैं, उसमें हमारे पास कोई towel नहीं है कि आपका tissue paper वगैरह नहीं है. We must have to use our elbow for coughing and sneezing to prevent the spread of microorganism to other individual. Suppose मेरे को अभी sneezing हो रहा है, coughing हो रहा है, मैं यहाँ पर sneezing किया, because I am using my right elbow or whether I can use my left elbow. Okay, you people have to do like that. Okay, जब भी coughing sneezing कर रहे हैं, मास्क शायद यूज रहेगा, मास्क करेंगे, हैंडकर्चीफ रहेगा तो हैंडकर्चीफ यूटिलाइज कीजिए. ओके, मीन माउथ कवर होना चाहिए. ओके, माउथ शुड बी प्रॉपर्ली कवर्ड, बिकॉज जो रेड में हम स्नीजिंग करते हैं, कॉफिंग करते हैं, उसी रेड में अगर इंडिविजुअल उसी डिस्टेंस में है, 1 मीटर डिस्टेंस में है कि मोर देन 1 मीटर डिस्टेंस में है, तो उसको इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं है. अगर विद इन दैट 1 मीटर के डिस्टेंस में है वो पर्सन, अगर हम ओपनली अगर स्नीजिंग कॉफिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट विल बी इन्फेक्टेड बाय दैट इंडिविजुअल, बिकॉज वो ड्रॉपलेट न्यूक्लिएट क्या होगा, ओके, वो पर्सन इनहेल करेगा. सो इफ टिश्यू आर यूज्ड, डिस्कार्ड इट इमीडिएटली टू द थ्रासबिन. जो भी हम बोले हैं, हम लोगों को जो भी टिश्यू पेपर यूटिलाइज किए, थ्रासबिन मीन कवर, लीड कवर में रहेगा वो बीन, उसमें हमको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है. कॉफ एंड स्नीज इनटू योर स्लीप इफ नो टिश्यू इज अवेलेबल. मैं आप लोगों का अवेलेबल टूल हो. क्लीन योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर और अल्कोहल बेस्ड. जब भी हम कॉफिंग स्नीजिंग करते हैं, क्योंकि एमईएन को हमको याद रखना चाहिए. एमईएन माउथ हुआ, ओके, आईज हुआ, नोज हुआ. ओके, यहाँ पर हम बार बार टच नहीं करना है. ओके, यही चीज को हमको, मीन हाथ को हमेशा हमको हैंड वॉशिंग करके रखना चाहिए. ओके, डू नॉट स्पीड हिदर एंड दिदर, माने वी शुड नॉट स्पीड हियर एंड देयर. ओके, जो यहाँ पर पब्लिक ज्यादा नहीं एक्सपोजर है, एक अच्छा क्या लीड जहाँ पर लगा हुआ है, उसी डस्टबिन में आप स्पीड कर सकते हैं. यू शुड नॉट स्पीड हियर एंड देयर, बिकॉज other person will come in contact with that speed. At the same time, they will be infected with that coronavirus, isn't it? Promoting respiratory hygiene. कैसे आप respiratory hygiene promote करेंगे, उसी हिसाब से हम अभी देखेंगे. Now we'll focus on that. Encourage hand washing for patient with respiratory symptoms. जिस आदमी को अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम देखने को मिल रहा है, जैसे आपको कॉफिंग हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, ओके, अगर ये हमको पेशेंट अगर साइन सिम्टम्स, कोल्ड हुआ है, ओके, अगर ये साइन सिम्टम को देखने को मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे, भाई साहब आप ऑब्वियसली कि जो भी आप बने अकॉर्डिंग टू योर ग्रीटिंग्स, हाउ यू विल ग्रीट देम. ओके, इन दैट केसेस वी विल टेल देम यू शुड वॉश योर हैंड. Provide a mask for patient with respiratory symptoms. Those who are having the respiratory symptoms like cold, cough, okay, we should have to give face masks, or that is a surgical mask, so कि cloth mask, so as per the availability of the, as per the hospital policy. Patient with fever plus cough or sneeze should be kept at least 1 meter away from the. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी बुखार हो रहा है, कि मेरे को अभी कॉफ हो रहा है, कि स्नीजिंग कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे आदमी के साथ अगर बात करूंगा, तो ओके, मैं 1 मीटर डिस्टेंस आई हैव टू मेंटेन दैट वन, बिकॉज वो आदमी उसी टाइम क्या होगा, इनहेल कर लेगा. मैं जो भी प्रोडक्ट नहीं करना, मैं तो मास्क पहना होगा, ये पूरा पूरा मैंडेटरी है भाई, उनको पहनना जरूरी है. मोस्ट विजुअल लेट्स रिमाइंडिंग पेशेंट विजिटर विद रेस्पिरेटरी सिम्टम ओवर देयर. जब भी कोई पेशेंट आता है ये रेस्पिरेटरी साइन सिम्टम की, तो उसी टाइम हमको क्या है, वो उनका माउथ को कवर करना जरूरी है. ओके, PP for use in healthcare for COVID-19. Personal protective care or personal protective equipment for using, okay, in the care माने in the healthcare for COVID-19. Okay, healthcare में कौन कौन सा PP किट विभाग है. फर्स्ट है फेस मास्क, ओके, नोज पर माउथ को कवर करेगा, N95 नोज प्लस माउथ को कवर करेगा, फेस शील्ड आईज नोज प्लस माउथ, इसके बाद गॉगल्स, ये आईज को प्रोटेक्ट करेगा. उसके बाद गाउन दैट विल कवर होल बॉडी, apron that will cover the body also, gloves that will, okay, protect the hand, okay, head cover, head plus hair. So in this way, this one is the PP for use in healthcare for COVID-19 patient. Okay,
Risk assessment and standard precaution. Risk assessment, risks of exposure, extent of contact, anticipate with blood, body fluid, respiratory droplets and open skin. रिस्क असेसमेंट कौन कौन सा है? जब भी हम पेशेंट का ब्लड कॉन्टैक्ट में आते हैं, कि किसी भी ब्लड बॉडी फ्लूइड्स में कॉन्टैक्ट में आते हैं, कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उसी टाइम हमको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मेजर यूज करना चाहिए. जैसे सिलेक्ट व्हिच पीपी आइटम्स टू यूर बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट. हमको इंडोर पेशेंट में क्या करना है, आउटडोर पेशेंट में कैसे करना है, ओके आईसीयू में कौन सा चीज करना चाहिए, एम्बुलेंस में क्या करना चाहिए, डेड बॉडी अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, पेशेंट क्या करना चाहिए, रेस्पिरेटरी वेटिंग एरिया में क्या करना चाहिए, सब चीज को अकॉर्डिंग टू द नीड. उसका एक तो पॉलिसी है, उसके गाइडलाइंस है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस वी हैव टू यूज दैट different kinds of PPE. Perform hand hygiene according to WHO 5 movement should be done for each patient each time. Okay, एक पेशेंट के लिए मैं जैसे कर रहे हैं, जैसे प्रोसीजर कर रहे हैं उसी हिसाब से प्रोसीजर होना चाहिए. ओके, लुक हियर. Minimize direct unprotected exposure to body blood and body fluid. Scenario always before and after patient contact, after contaminated environment. Hand hygiene करना चाहिए, ग्लोव्स नहीं पहनना है, गाउन मेडिकल मास्क आए हुए नहीं. If direct contact with blood and body fluid, secretion, excretion, mucous membrane, non-intact, और हैंड हाइजीन करना चाहिए, ग्लोव्स यूज. ग्लोव्स तो व्यवहार करेंगे, उसके बाद हैंड हाइजीन करना जरूरी है. If there is risk of splashes onto the healthcare workers body, तो अगर कोई बॉडी एक्सपोजर होने का चांसेस है तो वहां पर हम हैंड हाइजीन, ग्लोव्स और गाउन व्यवहार करें. इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ स्प्लैश इन द बॉडी एंड फेस, तो ये सब नेक्स्ट करना है.